زنگ کو دور کرنے کے لیے اس کو حرکت میں لایا جاتا ہے، کمیونٹی موبلائزیشن کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر جاگرتی پیدا کی جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے کہ بچوں کے دراز علاقوں میں ڈھوکروں میں بیچتے ہیں، ضرور ایک دو چکر لگا کر ان بہنوں کے لیے نمک لے کر جاتے ہیں۔ یہ امر ہے کہ ہم اپنے سکولوں میں گورنمنٹ نے ہر کام کی ہے، فری تعلیم جو ہے وہ سکولوں میں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کچھ کو تو پتہ ہوگی، جن کو پتہ نہیں ہے، سرکار نے یہ چاہا ہے کہ ہر خاص و عام بندے کو پتہ ہو کہ اس کا کیا رول ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے اور اس کی پھر ذمہ داری کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہو تاکہ سکولوں کو بہتر بنایا جائے۔ ہمارے Food is a necessary for life body. If you want to make in a society has a well behaved person, then you make بناتے ہیں کبھی گھر اپنے بچوں کا، یہ بس پرواز کرنے کا ہنر ان کو سکھاتے ہیں، یہ بس پرواز کرنے کا ہنر ان کو سکھاتے ہیں۔ پرائیویٹ یہ جب لسٹیں نکلتی ہیں، دیکھیے بچے نے بیسک کا جلتا ہوں، گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر یہ سوچتا ہے میری چلائیں گے ہم سب مل کر ایک تحریک چلائیں گے۔ نشو نما کرنی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نہ صرف ٹیچر ہی ایک والنٹیئر کی طرح رہے، بلکہ یہ سارے لوگ جو کہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں وہ سب بھی اس میں اپنا اپنا تعاون کریں۔ بات کا مقام اور درجہ دیا ہے تو صبح سے میری ٹیم نے، مختار شاہ صاحب نے، ہماری ٹیم کے تمام جتنے بھی ممبران ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، سب کا اگر نام لے لوں تو ٹائم کی قلت ہے، تو بڑا وقت لگا کر انہوں نے کمیونٹی موبلائزیشن کے ریلیٹڈ جو ہے سب کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے جو مقصد تھا ہمارا۔ محمد یوسف شاہ، میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں۔ یہاں پہ گورنمنٹ مڈل اسکول لسانہ میں آج ایک کمیونٹی موبلائزیشن کا جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے، میں تہ دل سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور خصوصی طور پہ چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہایت ہی ایماندار ہیں اور بہت ہی ایک اچھے آفیسر ہمیں ملے ہیں۔ ایسے ہی میں اپنی زڈیو محترمہ شمیم بخاری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس چیز کی ضرورت تھی۔ جو ایک برڈن جو تھا ایک ٹیچر پہ تھا، کیونکہ اکیلا ایک ٹیچر اس کو لے کے سفر میں چل رہا تھا، کہیں نہ کہیں ہمیں راحت ملی ہے۔ یہاں پہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کو بلایا ہے، یہاں پہ پیرنٹس کو بلایا ہے، جہاں ایک ٹیچر اپنے کارواں کو لے کر چل رہا تھا، وہیں پہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں میں بڑی نیگلیجنسی رکھتے تھے، وہ گورنمنٹ اسکولوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اپنے بچوں کو صبح اسکول میں بھیج دیا لیکن رات کو انہوں نے نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں تھا، بچے نے کیا پڑھا۔ ایسے ہی میں نے اپنے اسکولوں میں جب میں پڑھاتا تھا، میں گورنمنٹ مڈل اسکول فاگلا میں رہا، وہاں پہ بھی میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ آئیے، ہم سے ایک ہمارا ٹائم ٹیبل ہے وہ لیجئے اور آپ رات کو اپنے بچوں سے حساب لیجئے کہ آپ کے بچے کو کیا پڑھایا ہے، کس کا پیریڈ لگا ہے، کس کا نہیں لگا، تو نظام جو ہے معاشرے میں جو ہے سدھار آٹومیٹکلی آئے گا۔ اگر ایک ٹیچر پہ ہی ڈالا جائے تو مجھے لگتا ہے یہ کارواں جو ہے مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا۔ یہاں پہ دو طریقے کے ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں، دو مسائل ہیں۔ یہ جو انرولمنٹ ڈرائیو کا جو پروگرام چل رہا ہے، یعنی گورنمنٹ اسکولوں میں انرولمنٹ کو ڈرائیو کرنا، یہاں پہ دو فیکٹر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اسکول کھلے اس وقت جو تھے، کوئی پنچ سرپنچ حضرات تھے یا کوئی ہمارے زیڈیو صاحبان یا سی او صاحبان تھے، انہوں نے جو اسکول کھولے ایک تو غلط لوکیشن پہ کھل گئے، وہاں پہ 2 گھر تھے تو وہاں اسکول کھل گیا، جس کا کارن انرولمنٹ کم ہونا ہے۔ اور دوسرا کارن جو ہے وہ ہے پیرنٹس کی عدم توجہ، پیرنٹس توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے حالانکہ گورنمنٹ، میں پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نہیں ہوں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ بھی بڑے محنتی ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں ویل کوالیفائڈ سٹاف ہے، بہت ڈیڈیکیٹ ہے۔ ہاں،
अगर 5% लोग लापरवाह हैं तो वो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो खींच के स्कूलों में ला सकते हैं। वो जब रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है टीचर की चेक करेंगे तो वहाँ पे टीचर जो है खुद बहुत मजबूर हो जाएगा स्कूल आने के लिए, और ये निज़ाम जो है, ये तालीम जो है बेहतर होने में मुझे लगता है कि कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और मैं आज आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे जो मसाइल जो हैं वो हाईलाइट करते रहते हैं, और जैसा कि आज भी आप इस मौसम की ख़राबी में यहाँ पहुँचे हैं तो मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे आरपी साहिबान हैं, सफदर शाह साहब, और हमारे सुरनकोट के जितने भी ये हमारे आरपी हैं, आरिफ भट्टी साहब हैं, कदीर साहब हैं, मुख्तार साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा जो बर्डन था उसको हल्का करके अब आवाम पे डाला है। और आवाम नाज से मैं ये अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें और शाम को अपना हिसाब लें कि बच्चे मेरे ने क्या किया है। अगर उसका कोई पीरियड नहीं लगता तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसे पुट अप करें हमारे स्कूल स्टाफ के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वही मैंने आपको कहा है कि अगर एक बच्चा स्कूल में आया था, मान लीजिए आपका बच्चा ही है, आपके बच्चे भी हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल आया है तो उसका पीरियड नहीं लगा है, तो जब रात को आप पूछेंगे कि मेरे बच्चे का इंग्लिश का पीरियड क्यों नहीं लगा, मैंने वजाहत कर दी ना आपसे कि हमारे पास एक टाइम टेबल होता है, हमारे 40 पीरियड होते हैं, हमारे 5 हैं या 6 टीचर हैं या 2 हैं, तो उनको हमने पीरियड दिए होते हैं। एक बच्चे का अगर पीरियड नहीं लगा तो वो रात को क्वेश्चन कर सकता है कि मेरे बच्चे को, हाँ, जो लापरवाह हैं, मैं उन टीचर साहिबान से भी गुजारिश करता हूँ कि अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हमें आउटपुट देना है। जैसा कि आपको भी पता है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पहुँचे, बड़े ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो है हमारा एक टेस्ट रखा बच्चों का 3rd और 5th का, जो बफलियाज में और मंडी में, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम हुए, तो बाद में हमने कहा कि सीओ साहब को कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब आप खुद मेरे सवाल का जवाब आपको खुद मिल गया कि वहाँ पे टीचरों को परेशानी उठानी पड़ी। तो टीचर साहिबान जो नहीं पढ़ाते हैं, मैं कह सकता हूँ 5% ऐसे होंगे, लेकिन यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आवाम जो है वो उठ खड़ी हो कि आपको 50,000 या 70,000 सैलरी मिलती है तो आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए, तो कोई ऐसा टीचर नहीं, या तो वो नौकरी छोड़ेगा या बच्चों को पढ़ाएगा, ऐसा कोई भी मसला जो है नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है और वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, इनके हुक्म के मुताबिक ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक तहरीक जो है वो चलाई जा रही है। वो सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि हमारे जोन में आज से कबल 8 रोज़ यानी 8 ऐसे एरियाज़ जो हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ स्कूलों को दूर दराज के जो उसके गिरदनवा में थे उनको वहाँ पर बुलाया, और इसी तरीके से आज लसाना में भी यहाँ के गिरदनवा के जितने भी स्कूल हैं उनके टीचर्स और SMC कमेटीज़, पेरेंट्स और यहाँ पर जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनको भी हमने मदऊ किया, ताकि हम एक दूसरे के साथ ये मशवरा कर सकें कि किस तरीके से हमने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है, इसकी तरक्की है, इसका इल्म है, इसका MDM का सिस्टम है, या हमारी जो भी मेंटेनेंस सोर्स ऑफ इनकम आते हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये हमने तारफ़ जो है वो करवाया है SMC कमेटी को, और यहाँ पर ये भी हमने बताया है कि यहाँ पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, उस्ताद इकराम का क्या रोल रहेगा, और साथ साथ SMC कमेटी जो है उसका क्या रोल रहेगा, और किस तरीके से हमने इस स्कीम को कामयाब करना है, जो कि बहुत सारी मरहत, बहुत सारी स्कीमें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से या हमारी स्टेट की तरफ से बच्चों के लिए आती है, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इनके बारे में इल्म नहीं है कि किस किस्म की स्कीमें हैं। उन स्कीमों के बारे में भी हम इन लोगों को रोशनास करवा रहे हैं कि आपके हकूक़ हैं, आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। जिस तरीके से सरकार हर तरह की मरहत जो है वो पूरी किए जा रही है, बच्चों का स्कॉलरशिप हो, MDM का मसला हो, या कि उनकी बुक्स हो, हर तरह की कोशिश करके सरकार जो है वो ये चाहती है कि बच्चा इल्म हासिल कर सके और इल्म हासिल करके मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। बहुत अच्छा प्रोग्राम था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लसाना में,
ये साजा इकराम ने बड़ी तफसील के साथ बताया जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीमें उनके बारे में कि कैसे यहाँ हर चीज़ की सहूलियत दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, और जो अभियान गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, चाहे नशा के ख़िलाफ़ हो, चाहे अदर जो ख़राब एक्टिविटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हो, या ख़ास कर तालीम के मतलब, तो साजा इकराम ने और ZDO मैम साहिबा सुनकोट भी आई हुई हैं कि यहाँ उन्होंने भी, और जो अपने सफदर साहब हैं और जो मुख्तार साहब हैं और जो भट्टी साहब हैं और जो बाकी साजा इकराम हैं इस स्कूल के, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ लोगों को अवेयरनेस किया कि यहाँ क्या क्या, और लोगों ने भी ये समझा कि वाकया ही सरकारी स्कूल हमारे लिए अच्छे हैं। हम आज के दौर में पैसे देकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों भेजें, जबकि सरकारी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है। वहाँ के उस्ताद इकराम नहायत ही काबिल तरीन उस्ताद हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो बहुत मेहनत करा रहे हैं, टाइम टेबल का बहुत ख्याल रख रहे हैं। हर तरह की स्कूल में सहूलियात हैं, चाहे खेल के मतलब हो, चाहे और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ हो, चाहे खाने का प्रबंध हो या जो भी हो। इसलिए हमने ये आज महसूस किया है कि जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में कर रही है ये बहुत बेहतर है। इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं और उन पर नज़र रखें। आज गवर्नमेंट ने जो सिविल CVLC या SMC को साथ में जोड़ा गया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस स्कीम का फ़ायदा लें और कोऑपरेट करें उस्ताद इकराम के साथ और बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। ये हमने पाया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है हर मिशन के बारे में।